بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ ابا جان آج مسجد سے لوٹے تو بہت پریشان اور بے چین تھے۔ بار بار اٹھ کر ٹہلنے لگتے تھے۔ مشین پر کپڑے سلائی کرتے ہوئے میں انہیں ہی دیکھے جا رہی تھی۔ جب کافی دیر تک وہ ٹہلتے رہے تو مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں نے پوچھ ہی لیا، ابا جان کیا بات ہے؟ آج آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ سب خیریت تو ہے نا؟ ابا جان جو اپنے خیالوں میں کھوئے ہوئے ٹہل رہے تھے، میری آواز پر چونک گئے۔ وہ چند لمحوں تک خاموشی سے میری طرف دیکھتے رہے اور پھر بولے، کچھ خاص بات نہیں ہے بیٹی، بس یوں ہی آج دل کچھ بے چین سا ہو رہا ہے۔ ابا جان زبان سے تو کہہ رہے تھے کوئی خاص بات نہیں، مگر ان کا لہجہ کچھ اور ہی کہہ رہا تھا۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ مجھ سے اپنی پریشانی شیئر نہیں کرنا چاہتے تھے۔ میں نے کہا، ابا جان اگر آپ بتانا نہیں چاہتے تو کوئی بات نہیں، مگر آپ کی پریشانی ظاہر کر رہی ہے کہ کچھ تو ایسی بات ضرور ہے کہ آپ سکون سے بیٹھنا بھول گئے ہیں۔ ابا جان میری بات سن کر افسردہ سے ہو گئے۔ وہ موڑھا اٹھا کر میرے پاس بیٹھ گئے۔ چند لمحے تک تو وہ خاموشی سے سر جھکائے بیٹھے رہے، پھر میری طرف دیکھا۔ میں سوالیہ نظروں سے انہیں ہی دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ دھیمی آواز میں گویا ہوئے، آج بشیر چودھری کا ملازم آیا تھا، وہ پھر سے وہی بات کہہ کر گیا ہے اور ساتھ ہی دھمکی بھی دی ہے کہ اگر اس کی بات نہ مانی اور گواہی سے پیچھے نہیں ہٹا تو وہ… ابا جان کی زبان رک گئی۔ وہ تھوک نکل کر اپنے حلق کو تر کرنے لگے تو میں نے بے چینی سے پوچھا، ورنہ کیا کرے گا وہ؟ بتائے نا ابا جان۔ ابا جان نے اپنا ہاتھ اٹھا کر مجھے رکنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس نے کہا ہے کہ اگر ہم نے اس کی بات نہیں مانی تو وہ تمہیں اٹھا کر لے جائے گا۔ ابا جان نے یہاں تک بتا کر بات ادھوری چھوڑ دی تھی، مگر میں ان کی بات کا مفہوم اچھی طرح سمجھ گئی تھی۔ اس کا مطلب واضح طور پر یہ تھا کہ اگر ہم نے وہ نہ کیا جو چودھری بشیر چاہتا ہے تو وہ میرے ساتھ بھی وہی سلوک کرے گا جو اس نے سنہالی کے ساتھ کیا تھا۔ ابا جان کی بے چینی اور پریشانی کی وجہ میری اب سمجھ میں آ گئی تھی۔ میرے دل و دماغ میں غم اور غصے کا طوفان کروٹ لینے لگا۔ میں نے ایک نظر ابا جان پر ڈالی جو چپ چاپ سر جھکائے اپنی آنکھوں میں موجود بے بسی کے آنسوؤں کو چھپانے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ میں دل میں اپنا عزم پختہ کرتے ہوئے اندر چلی گئی۔ ابا جان تھوڑی دیر تک وہیں بیٹھے رہے، پھر باہر نکل گئے۔ میں جانتی تھی کہ وہ اپنے پرانے دوست سے ملنے اور مشورہ کرنے گئے ہوں گے۔ ان کی غیر موجودگی میں میرے لیے موقع اچھا تھا۔ میں نے چادر اوڑھی اور باہر نکل آئی۔ گاؤں کی گلیوں میں ابھی تک دن کا اجالا پھیلا ہوا تھا، اس لیے یہاں پھیلی ہوئی جرم کی سیاہی نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے چادر کا پلو منہ پر کیا ہوا تھا، اس لیے مجھے یقین تھا کہ مجھے کوئی دور سے تو پہچان ہی نہیں سکتا۔ تیز تیز قدموں سے چلتی ہوئی میں اس جگہ آ گئی جہاں ہندوؤں کا شمشان گھاٹ بنا ہوا تھا۔ یہ شمشان گھاٹ بہت پرانا تھا، شاید سینکڑوں سال پہلے کا ہوگا۔ یہاں اب بھی کبھی کبھار کوئی ہندو خاندان اپنا مردہ لے آتا تھا جلانے کے لیے، لیکن اس وقت وہاں پر ویرانی کا سا سما تھا۔ شمشان گھاٹ پر پہنچ کر میں نے ارد گرد کا اچھی طرح سے جائزہ لیا۔ جب کوئی اور ذی نفس وہاں پر نظر نہ آیا تو میں یہاں پر بنی ہوئی اکلوتی کوٹری کی طرف آ گئی۔ یہ پنڈت پجاریوں کے لیے بنائی گئی تھی، مگر یہاں کوئی اور نہیں رہتا تھا سوائے اس کے جس سے میں اس وقت ملنے آئی تھی۔ میں نے کوٹری کے دروازے پر دستک دی۔ دوسری دستک پر اندر سے کسی نے پوچھا، کون ہے بھائی؟ میں نے دھیمی آواز میں جواب دیا، میں ہوں فریحہ۔ فوراً ہی دروازہ کھل گیا۔ میں نے دروازے میں اسے کھڑے دیکھا۔ وہ 20-25 سالوں کا ایک خوبصورت اور معصوم سے چہرے والا نوجوان تھا، جس کی آنکھیں گہری نیلی تھیں، جن میں ہمہ وقت سرخ ڈورے سے تیرتے رہتے تھے۔ وہ رام تھا، یہاں کے پنڈت کا شاگرد۔ اس نے مجھے دیکھ کر حیرت سے پوچھا، فریحہ جی آپ اس وقت یہاں کیا کر رہی ہیں؟ میں نے جواب دیا، رام میں ایک مشکل میں پھنس گئی ہوں۔ کلپنا نے کہا تھا کہ تمہارے پاس میری مشکل کا حل ضرور بالضرور ہوگا، اسی لیے میں تمہارے پاس آئی ہوں۔ وہ چند لمحے تک خاموشی سے دیکھتا رہا۔ اس کی نگاہوں میں میرے لیے جو جذبہ چھلکتا تھا میں اس سے انجان نہیں تھی، مگر میں اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے میں نے فوراً ہی نظریں چرا لیں تو وہ بھی ہوش میں آ گیا۔ اس نے کہا، میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں فریحہ جی؟ اپنا مسئلہ بتا دیں۔ میں نے وہیں کھڑے کھڑے اسے چودھری بشیر والا سارا قصہ سنا دیا۔ وہ بڑے غور سے سنتا رہا اور جب میں خاموش ہوئی تو مسکرا کر بولا، بس
इतना सा मसला है? ये तो मैं मिनटों में हल कर लूंगा, आप बेफिक्र हो जाएं। मैंने उसे हैरत से देखते हुए पूछा, मगर तुम इसे कैसे हल करोगे? वो बोला, मैंने कहा ना, आप इस बारे में बिल्कुल भी परेशान मत हो, बस बेफिक्र होकर घर जाएं। मैं बता नहीं सकता, मगर हल जरूर कर लूंगा। उसकी बात सुनकर मुझे कुछ इत्मीनान तो हुआ, मगर तजस्सुस फिर भी बरकरार हुआ। लेकिन उसके इसरार पर वापस घर की तरफ चली आई। मेरी वापसी के थोड़ी देर बाद अब्बा जान भी चले आए। रात हो रही थी। मैंने खाना बनाया और उनके साथ बैठकर खाया। उसके बाद हम लोग सोने के लिए लेट गए। मेरी आंखों से नींद कोसों दूर थी। गुज़श्ता जिंदगी का ख्याल और आने वाली जिंदगी के खदशात मुझे सोने नहीं दे रहे थे। मेरा ताल्लुक एक पसमानदा गांव से था, जहां बिजली के अलावा और कोई खास सहूलत मौजूद न थी। मेरे अब्बा जान नूर मोहम्मद गांव की मस्जिद के पेश इमाम थे। वो इमामत के फराइज अंजाम देने के अलावा गांव के बच्चों को कुरान मजीद भी पढ़ाते थे। अपनी गुज़र औकात के लिए उन्होंने मस्जिद के करीब ही एक छोटी सी दुकान खोल रखी थी, जो उनकी ईमानदारी की वजह से अच्छी चल रही थी। इसलिए वो किसी के भी जेरबार ना थे। इस गांव में मिली जुली आबादी थी। मुसलमान और हिंदू तकरीबन बराबर ही तादाद में आबाद थे। आमतौर पर जब दो अलग थलग मज़ाहिब के लोग एक ही जगह रहते हैं तो कोई न कोई मसला हो ही जाता है, मगर यहाँ ऐसा नहीं था। मुसलमान और हिंदू दोनों ही एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होते थे और एक दूसरे के घरों में आना जाना भी लगा रहता था। खुद मेरी भी सबसे अच्छी सहेली कल्पना कार्तिक हिंदू थी। ये तो अक्सर ही होता आया है कि जहाँ अच्छे लोग होते हैं वहीं पर बुरे भी पाए जाते हैं, तो कुछ ऐसा ही यहाँ भी था। यहाँ पर दो ही तबके पाए जाते थे, एक जमींदार घराने और दूसरे आम लोग। जमींदार घरानों को कई सहूलियात और मराहत हासिल थी, जबकि गरीब तबका अक्सर उनके हाथों पिसता रहता था। जमींदारों में हिंदू और मुसलमान दोनों ही शामिल थे। बशीर चौधरी भी उन्हीं में से एक था। वो बेहद अय्याश और बदकिरदार आदमी था। उसकी नजरों से गांव की सभी लड़कियां एक जितना ही खतरा महसूस करती थीं। कल्पना की मामू जात सुनहाली भी उन्हीं में से एक थी। वो एक हंसमुख शोखो चंचल लड़की थी। वो बहुत खूबसूरत भी थी और जुर्रतमंद भी, जिसे जो कहना होता था खुलकर कह देती थी और अपनी इस आदत की वजह से अक्सर किसी न किसी मुश्किल में भी फंसती रहती थी। उस दिन हम लोग खेतों में घूमने जा रहे थे। कल्पना, सुनहाली और मेरे अलावा कुछ दूसरी लड़कियां भी थीं। हम हंसते खेलते जा रहे थे जब कच्चे रास्ते पर हमारे करीब एक जीप आकर रुक गई। जीप को देखकर हम सब परेशान हो गई थी, क्योंकि उसमें चौधरी बशीर सवार था। उसकी उम्र तो 40 के आसपास थी, मगर हुलिया लोफरों जैसा ही होता था। उसने गहरी नजरों से हमें देखते हुए पूछा, क्या बात है भाई, आज हसीनों का लश्कर किधर के किले फतह करने जा रहा है? उसकी बात सुनकर हम सबको गुस्सा तो बहुत आया था, मगर हम जब्त कर गईं। उसके मुंह लगने से अपनी ही इज्जत पर हर्फ आता था, इसलिए मैंने इशारा कर दिया और हम सब खामोशी से एक तरफ चलने लगी। चौधरी बशीर को शायद इस बात की तवक्को न थी कि उसे इस बुरी तरह से नजरअंदाज किया जाएगा। वो आग बगोला होकर गाड़ी से उतरा और हमारे रास्ते में खड़ा हो गया। उसने सुलगती हुई नजरों से हमें देखा और बोला, तुम कम्मी कमीन छोकरियां अपनी औकात भूल गई हो क्या? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा था, जवाब दिए बगैर कहाँ मुंह उठाए भागे जा रही हो? उसके अंदाज में इतनी तहकीर थी कि हम सब का खून खौल कर रह गया। सुनहाली अपने आप पर काबू न रख सकी। उसने गुर्राते हुए कहा, चौधरी बशीर, कमीन हम नहीं तुम हो जो अपने ही गांव की लड़कियों पर नजर रखते हो। हम तो अपनी औकात नहीं भूले। हाँ, तुम जरूर अपनी औकात से बाहर हो रहे हो। चौधरी बशीर ये सुनकर गुस्से से तिलमिला उठा। उसने आगे बढ़कर पंचे में सुनहाली का चेहरा दबोचते हुए कहा, तू 2 टके की नौकरानी, तू जबान खोलेगी मेरे सामने? तेरी इतनी जुर्रत? सुनहाली ने एक झटके से उसका हाथ परे झटका और खींच कर उसे एक थप्पड़ रसीद करते हुए बोली, तू होता कौन है मुझे 2 टके की नौकरानी कहने वाला? इससे पहले कि चौधरी बशीर कुछ और कहता या करता, सामने से गांव के कुछ मोहम्मद लोग आते नजर आए। चौधरी शायद उनके सामने कोई तमाशा नहीं चाहता था, इसलिए खून के घूंट पीता हुआ अपनी जीप में जा बैठा और वहां से चला गया। मैंने परेशानी से कहा, ये तूने क्या किया सुनहाली? जानती है ना ये शख्स कितना कीना परवर है। अगर उसने तुझसे बदला लेने की ठान ली तो क्या होगा? सुनहाली ने सुकून से कहा, कोई माई कलाल सुनहाली को हाथ नहीं लगा सकता। तुम फिक्र मत करो, कुछ नहीं होता। वो मुतमईन थी, मगर हम सबका इत्मीनान गारत हो गया था। चौधरी बशीर बदला लेने के मामले में ऊंट की फितरत रखता था।
वो उस थप्पड़ का बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था, और यही हुआ। उस वाकये के 2 दिन बाद जब अब्बा जान रात को देर से वापस आए तो पसीने में नहाए हुए और सब परेशान थे। उनकी हालत देखकर मैं घबरा गई। क्या बात है अब्बा जान, क्या हुआ है, आप ठीक तो हैं? मेरे पूछने पर वो नफी में सर हिलाते हुए कहने लगे, नहीं बेटी, खैरियत नहीं है। गोपाल दास की बेटी सुनहाली मार दी गई है। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं अब्बा जान? मैं दुख से चीख पड़ी। हाँ बेटी, मैं अपने दोस्त जलाल से मिलकर वापस आ रहा था कि रास्ते में मैंने चौधरी बशीर और उसके 2 आदमी देखे। वो झाड़ियों से निकल रहे थे। मैंने चुपकर उनके जाने का इंतजार किया और जब वो चले गए तो जाकर वहां देखा। वहां सुनहाली का बरहना और मुर्दा जिस्म पड़ा हुआ था। मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ वापस पहुंचा हूँ। अब्बा जान की बात सुनकर मेरी आंखों तले अंधेरा छा गया। मैं घुट घुट कर रोने लगी। कल्पना के बाद सुनहाली मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। अब्बा जान ने चोरी छुपे गोपाल दास को इत्तला दे दी थी। पता चला कि शाम को सुनहाली कल्पना के पास जाने के लिए घर से निकली थी। जब काफी देर होने के बाद भी वो वापस नहीं आई तो उसका बाप उसे बुलाने गया, मगर वहां जाकर पता चला कि वो तो वहां गई ही नहीं थी। उन लोगों ने आसपास बहुत ढूंढा मगर कुछ पता न चल सका। 2 दिन पहले वाले वाकये की खबर उन्हें भी थी और उन्हें भी चौधरी बशीर पर शक था, मगर उनके पास कोई सबूत नहीं था जिसके बलबूते पर वो कुछ कह सकते। मगर अब्बा जान की गवाही के बाद उन्होंने रिपोर्ट दर्ज करा दी। सुनहाली मर चुकी थी और इसकी मौत के चश्मदीद गवाह मेरे अब्बा जान थे। पहले तो वो हिचकिचाते रहे, मगर जब कल्पना रोते हुए उनके पैरों में बैठ गई तो उन्होंने फौरन ही गवाही देने का फैसला कर लिया। थाने में रिपोर्ट दर्ज करने के बाद बशीर तो गिरफ्तार हो गया, मगर थाने में भी वो बड़े आराम से रह रहा था। पुलिस अफसर रिश्वत लेने के बाद केस को कमजोर कर रहा था। चौधरी ने अब्बा जान को बुलवाकर पहले तो पैसे की लालच दी, मगर जब अब्बा ना माना तो धमकियां देने लगे और ये धमकियां अभी तक जारी थीं। आज भी उसका आदमी अब्बा जान को मस्जिद में आकर मेरे हवाले से धमका कर गया था और पहली बार मैंने अब्बा जान के चेहरे पर कमजोरी के आसार देखे थे। मैंने इस बारे में कल्पना से बात की तो उसने कुछ सोचकर कहा, फरीहा, चच्चा जान का तो मुझे मालूम नहीं कि वो इस बारे में क्या सोचेंगे, मगर तुम एक बार राम लक्ष्मण से जरूर बात करो। वो मुश्किल से मुश्किल मसले भी बड़ी आसानी से सुलझा सकता है। उसे अजीब सी शक्तियां हासिल हैं। मेरी मानो तो तुम चच्चा जान के इल्म में लाए बगैर उससे एक बार जरूर बात करो। कल्पना की ये बात माकूल थी। मैंने राम लक्ष्मण को पहली बार शमशान घाट पर ही देखा था, जहाँ सुनहाली का अंतिम संस्कार हो रहा था। वो दराज कद और नीली आंखों वाला लड़का बहुत खूबसूरत था। वो कहाँ से आया था इस बारे में तो कोई नहीं जानता था। बस एक सुबह गांव के लोगों ने उसे शमशान घाट पर बनी हुई कोठरी के बाहर बैठे देखा था। उसने गांव वालों को पूछने पर बताया था कि वो इस दुनिया में अकेला है, उसका कोई रिश्तेदार नहीं, इसलिए वो नगर नगर भटकता रहता है। मगर अब वो किसी एक ही जगह अपना ठिकाना बनाना चाहता है और इस मकसद के लिए उसने इस गाँव का इंतखाब किया है। लोगों को पहले तो किसी अजनबी की बात पर इतनी आसानी से यकीन नहीं आया था, मगर राम लक्ष्मण के अच्छे बर्ताव ने सबको उसका गर्विदा बना लिया था और अब वो किसी के लिए भी अजनबी नहीं रहा था। अलबत्ता लोगों को उसका रहन सहन बहुत अजीब लगता था। वो कोई काम धंधा नहीं करता था और ना ही उसका कोई जरिया मौज था। उसे 2 ही चीजें पसंद थी, मिठाई और खुशबू। वो किसी का काम करता तो बस यही 2 चीजें तलब करता था और उसके अलावा रुपया पैसा कुछ भी नहीं लेता था। राम लक्ष्मण की तमाम शराफत के बावजूद उस दिन शमशान घाट पर उसकी नजरें बार बार मेरी तरफ उठ रही थीं। उसके 1-2 बार जब सरे राह मुलाकात हुई तब भी कुछ ऐसा ही हाल था। खुद मेरा दिल भी न जाने क्यों उसकी तरफ खिंचता चला जा रहा था। दिल चाहता था कि वो सामने बैठा हो और मैं उसकी तिलस्मी निगाहों के नीले समंदर में डूब जाऊं। जैसे जैसे वक्त गुजरता रहा था वैसे वैसे वो मेरे हवास पर छाता जा रहा था। मुझे महसूस होने लगा था जैसे उसकी मोहब्बत में मैं पूर डूबी जा रही हूँ। मैंने उसका ख्याल बहुत बार अपने सर से झटकने की कोशिश की, मगर नाकामी हुई। माजी के बारे में सोचते हुए कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। मैं गहरी नींद में खोई हुई इस बात से बेखबर थी कि मेरे घर के बाहर चंद लोग जिन्होंने मुंह पर ढाटे बांधे हुए थे मौजूद थे। काफी देर तक वो दीवार से लगे खामोशी से बैठे रहे। जब उन्हें यकीन हो गया कि अंदर सब सो चुके हैं तो उनमें से एक उठा और दीवार पर कमर डालने लगा। रस्सी की मजबूती का यकीन होते ही वो रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ने लगा। वो अभी आधे रास्ते तक चढ़ा था कि अचानक ही किसी ने उसे टांग से पकड़कर नीचे खींच लिया और वो धड़ाम से नीचे जा गिरा। उसके साथी चौंक गए। क्या हुआ?
नीचे क्यों गिर गया तू? उनमें से एक ने सरगोशी करते हुए पूछा। मुझे टांग से पकड़कर किसने खींचा था? उसने घुर्राते हुए पूछा। क्या मतलब है तेरी इस बात का? हम क्यों तेरी टांग खींचेंगे? उसके एक साथी ने बुरा मनाते हुए कहा। कमर ठीक से नहीं डली होगी इसलिए गिरे हो, दोबारा कोशिश करो। दूसरे साथी ने कहा और फिर दोबारा कमर फेंकने लगा। इस बार जूं ही वो आधे रास्ते तक पहुंचा, किसी ने जोर से उसे थप्पड़ मारा और वो भी अपने पहले साथी की तरह ही नीचे जा गिरा। थप्पड़ इस कदर शदीद था कि उसके हवास ही गुम हो गए। चंद पल बाद जब वो किस कदर होश में आया तो अपने साथियों को खुद पर झुका हुआ पाया। उसे होश में आते देखकर उसके साथियों ने सरगोशी की। जिंदा हो? हम तो समझे कि गर्दन ही टूट गई होगी तेरी। वो सब हैरान थे कि आखिर हो क्या रहा है कि वो बार बार गिर रहे हैं। उन्होंने फिर ऊपर चढ़ने की कोशिश की, मगर इस बार उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके चारों तरफ मकड़ी के जाले जैसी कोई चीज हायल हो गई है, जिससे आगे वो जा ही नहीं पा रहे थे। वो घबराकर पीछे हटने लगे। तभी जाकर वो जाला हटा और उन तीनों ने पीछे की तरफ दौड़ लगा दी। रात गहरी हो गई तो थाने का दरवाजा खुला और एक गाड़ी बाहर निकल आई। गाड़ी की रफ्तार खासी तेज थी। ये गाड़ी चौधरी बशीर की हवेली के सामने आकर रुक गई। गाड़ी का दरवाजा खुला और उसमें से चौधरी बशीर निकलकर अंदर चला गया। उसके अंदर जाते ही महफिल नाओनोश का आगाज हो गया। ये महफिल बड़ी देर तक जारी रही और उसके बाद हर कोई अपने कमरे में जाकर बेखबर सो गया। चौधरी बशीर भी अपने कमरे में पहुंचकर बेड पर गिर गया। उस वक्त वो शराब के नशे में धुत था। उसे सोए हुए थोड़ी ही देर गुजरी थी कि अचानक ही उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे सर से ऊपर उठाकर बेड पर पटक दिया हो। वो हड़बड़ाकर उठ बैठा था। कौन है? कौन है यहाँ? उसने गुस्सा और खौफ से चीखते हुए कहा। वो डरी डरी निगाहों से चारों तरफ देखने लगा। कमरे की लाइट बार बार जलकर बुझने लगी। खिड़कियों के पर तेजी से एक दूसरे से टकराए तो वो थर थर कांपने लग गया। फिर अचानक ही जैसे ये सब शुरू हुआ था वैसे ही रुक गया। चौधरी बशीर ने सुकून का सांस लेते हुए दरवाजे की तरफ दौड़ लगा दी जो खुला हुआ था, मगर जूं ही वो दरवाजे के करीब पहुंचा धड़ से वो बंद हो गया और चौधरी बशीर के हलक से एक खौफनाक चीख निकली। चौधरी बशीर की एक टांग दरवाजे के पट और दीवार के दरमियान आ गई थी। वो दर्द से तड़पते हुए सिबा होने वाले जानवर की तरह टकराने लगा। उसकी चीखों पुकार सुनकर मुलाजिम और घर वाले दौड़ते हुए आए तो उसकी हालत देखकर हक्का बक्का रह गए। उसकी बीवी ने पूछा, चौधरी जी क्या हुआ है ये सब? किसने मारा है आपको? चौधरी दर्द और गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, बकवास बंद कर मनहूस, पहले मुझे यहाँ से तो उठाओ। उसके मुलाजिमों ने जल्दी से उसे उठाकर पलंग पर लिटा दिया। थोड़ी देर बाद उसके वो तीनों आदमी उसके सामने आकर खड़े हो गए। क्या हुआ? ले आए हो तुम लोग उसे? वो अपनी तकलीफ भूलकर उनसे पूछने लगा। नहीं सरकार, हम उसे नहीं ला पाए, उनमें से एक ने सर झुकाकर कहा। उसकी बात सुनकर वो गुस्से से दौड़ा। क्या मतलब है तुम्हारा? कैसे नहीं लाए तुम उसे? वो चटांग भर की लड़की तुम्हारे काबू में नहीं आई? वो तीनों उसे गुस्से में देखकर थर थर कांपने लगे। उनमें से एक बोला, सरकार लड़की तक तो हम पहुंचे ही नहीं, बीच में ही किसी अंधे की ताकत ने मुक्कों और थप्पड़ों की बारिश कर दी। बकवास बंद करो, ये कहानियां मुझे ना सुनाओ, मुझे वो लड़की चाहिए। चौधरी बशीर उसकी बात सुनकर हुर्राते हुए कहने लगा तो वो सर झुकाए वहां से चले गए। चौधरी बशीर दिखावे को तो गुस्सा कर रहा था, मगर दर हकीकत वो खुद अंदर से हिला हुआ था। आज जो कुछ हुआ था उसने उसे भी लर्जा कर रख दिया था। वो इमाम मस्जिद की बेटी के बारे में काफी कुछ सोचने पर मजबूर हो गया था। मैं अगली रात जागी तो जहन तरोताजा था। मुझे राम का ख्याल आया, मगर रोज रोज अकेले में उससे मिलना मुनासिब नहीं था, इसलिए मैंने सोचा कि कल्पना को अपने साथ ले जाती हूँ। दोपहर को खाने से फारिग होकर मैंने अब्बा जान से कल्पना के घर जाने की इजाजत मांगी तो वो कुछ परेशान हो गए। बेटी, कुछ दिन तक घर से ना निकलो तो अच्छा है। चौधरी बशीर कैसा आदमी है ये तो तुम जानती ही हो, उन्होंने फिक्रमंदी से कहा। मैं उनके खदशात को समझ रही थी, मगर मेरा जाना भी जरूरी था, इसलिए मैंने अब्बा से कहा, अब्बा जान आप परेशान मत हो, कल्पना का घर हमारे घर से ज्यादा दूर नहीं है और फिर मैं गलियों के दरमियान से गुजरकर जाऊंगी। चौधरी बशीर सब के दरमियान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब्बा पता नहीं मुतमईन हुए थे या नहीं, मगर उन्होंने इजाजत दे दी थी। मैंने चादर ओढ़ी और बाहर निकल आई। गलियों के दरमियान से गुजरते हुए अगरचे लोगों की निगाहों का सामना तो करना पड़ा था, मगर मैं महफूज महसूस कर रही थी। कल्पना मुझे अपने घर में देखकर बहुत खुश हुई थी।
उसकी माता, जिससे मिलने के बाद हम लोग कल्पना के कमरे में आ गए। कुछ देर तक तो हम सुनहाली की बातें करते रहे, फिर मैं असल मौजू पर आ गई। मैंने कहा, कल्पना, मैं कल राम लक्ष्मण से मिलने गई थी। राम का नाम लेते हुए पता नहीं क्यों मेरी जबान लड़खड़ा गई। कल्पना ने हैरत से कहा, अकेली चली गई थी? मैंने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, हाँ यार, दोपहर को गई थी और अब्बा जान को इस बारे में मैंने नहीं बताया था। कल्पना ने दिलचस्पी से पूछा, अच्छा तो क्या हुआ फिर? क्या कहा उसने? मैंने जवाब दिया, कहना क्या था, बस यही कहा था उसने कि इतने से मसले के लिए आप परेशान मत हो, मैं हल कर लूंगा। मैंने बहुत पूछा भी कि कैसे हल करोगे, मगर इस बारे में उसने कुछ नहीं बताया। अच्छा, कल्पना ने पूछा, तो अब क्या करोगी? मैंने जवाब दिया, कल्पना, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? मैं आज उससे मिलना चाहती हूँ ताकि पूछूं कि उस बारे में उसने क्या किया। कल्पना ने कुछ हिचकिचाते हुए कहा, यार फरीहा, दरअसल बात ये है कि जब से ये सुनहाली का वाकया हुआ है ना, पिताजी ने मुझे बाहर ज्यादा आने जाने से मना किया है। और मैं तो तुम्हें भी कहूंगी कि एहतियात किया करो, लेकिन अगर आज तुम्हें चलना है तो अभी चलते हैं। मैं उसका डर समझ रही थी, मगर मेरी भी मजबूरी थी, इसलिए मैंने उसे साथ लिया और उसके पिताजी से इजाजत लेकर हम बाहर निकल आए। हमने अपनी एक और सहेली के यहाँ जाने का बहाना किया था। शमशान घाट ज्यादा दूर नहीं था, हम आधे घंटे से भी कम वक्त में वहाँ पहुँच गए। राम लक्ष्मण अपनी कोठरी के अंदर था। हम लोग जैसे ही दरवाजे पर पहुंचे तो वो फौरन खुल गया और राम बाहर निकल आया। अरे, आपको कैसे पता चला कि हम आ रहे हैं? कल्पना ने हैरानी से पूछा, तो वो मुस्कुराते हुए कहने लगा। वो बात तो कल्पना से कर रहा था, मगर उसकी नजरें मुझ पर ठहरी हुई थीं। उसकी बात सुनकर मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कल्पना भी छोटी बच्ची नहीं थी। राम के अंदाज से ही जाहिर हो रहा था कि वो मुझ में दिलचस्पी रखता है। उसने मायने खेज नजरों से मेरी तरफ देखा तो मुझे शर्म आने लगी। कल्पना क्या सोचती होगी मेरे बारे में? यही सोचकर मैंने कदरे रूखे अंदाज में संजीदगी से कहा, राम साहब, मेरे काम का क्या हुआ? राम बोला, जी, आपका काम यूं समझें कि हो गया है। चौधरी बशीर कितनी भी कोशिश कर ले, आपका बाल तक बेका नहीं कर सकता। मैंने हैरत से उसे देखा। ये आप कैसे कह रहे हैं? हो सकता है वो मुझे या अब्बा जान को कोई नुकसान पहुंचाना चाहता हो, तो उसका हमें पता कैसे लगेगा? और आपने क्या किया है इस सिलसिले में? मैं यही सब तो जानने के लिए आई हूँ यहाँ। राम ने कहा, फरीहा जी, आप बेफिक्र हो जाएं। वो चाह कर भी आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मैंने उसका बंदोबस्त कर लिया है। और सबूत के तौर पर मैं आपको बता दूं कि कल रात आपके घर के बाहर कुछ लोग थे जो अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, मगर उन्हें कोई कामयाबी नहीं हो सकी और उनको नाकाम और नामुराद लौटना पड़ा। ये बात सुनकर हम दोनों चौंक गईं। मुझे पहली बार हकीकी मायनों में डर लगने लगा। मैंने राम से पूछा, आपको इस बारे में कैसे मालूम हुआ? क्या आप जादू वगैरह करते हैं? मेरी बात सुनकर उसकी नीली आंखों में सुर्खी दौड़ गई। उसने गुस्से से कहा, फरीहा बीबी, मैं जादू वादू नहीं करता। मुझे भगवान ने कुछ ऐसा दिया है जिसकी वजह से मैं वो कुछ कर सकता हूँ जो आम इंसान नहीं कर सकते। आप मुझे भगवान की तरफ से दिए गए तोहफे को जादू कहकर तौहीन मत करें। उसकी बात सुनकर मैं कुछ शर्मिंदा सी हो गई। मैंने कहा, राम साहब, मेरा मकसद आपकी तौहीन करना नहीं था। मैं तो बस तजस्सुस की वजह से जानना चाहती थी कि आखिर आपको ये सब कैसे पता चला और आपने किया क्या है। बस इसीलिए मैंने पूछा। अगर आपके दिल आजारी हुई है तो मैं हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगती हूँ। मैंने हाथ जोड़ दिए तो उसने तड़प कर मेरे हाथों पर अपने हाथ रख दिए और कहने लगा, फरीहा, मुझे शर्मसार न करें। मैंने आपको माफी मांगने के लिए तो नहीं कहा। उसके हाथों का लिम्स पाते ही जैसे मेरे जिस्म में एक करंट सा दौड़ गया। वो मेरे ऐन सामने खड़ा था। उसकी गहरी नीली आंखों में मोहब्बत का ठाटे मारता समंदर नजर आया। मेरे दिल की धड़कन एक बार फिर बेतरतीब होने लगी। अचानक ही कल्पना के खनकारने की आवाज सुनाई दी तो मैंने जल्दी से उसके हाथों से अपने हाथ निकाल लिए और उससे जरा दूर होकर खड़ी हो गई। कल्पना शरारती नजरों से हम दोनों को देख रही थी। राम ने सटपटा कर कहा, कल्पना जी, शाम होने वाली है, आप लोग अब घर चली जाएं। अंधेरे से पहले घर पहुंचना अच्छा होता है। कल्पना ने शरीर लहजे में कहा, जी जी, जा रहे हैं भाई। वैसे मैं तो कबाब में हड्डी बनकर ही आई हूँ इनके साथ में। विश्वास करें, मुझे ये खुद जबरदस्ती खींचकर यहाँ लाई है। मैंने उसे घूर कर देखा तो उसकी जबान को ब्रेक लग गया, लेकिन पहली बार उसकी बात मुझे बुरी नहीं लगी थी। राम भी उसका मतलब समझ गया था और खजल सा होकर सर गुजा रहा था।
آنے سے پہلے میں نے وہ خوشبو کی شیشی جو اس کے لیے خریدی تھی وہ اور مٹھائی کی پوٹلی اسے دے دی۔ پہلے تو وہ ہچکچاتا رہا مگر پھر اس نے وہ تحفے لے ہی لیے۔ ہم لوگ گھر واپس آ رہے تھے۔ کلپنا دھیمی آواز میں بولتے ہوئے مجھے چھیڑ رہی تھی کہ اچانک ہی ایک جیپ آ کر میرے سامنے رک گئی اور اس میں سے منہ پر ٹھاٹے باندھے 2 آدمی اتر کر میری طرف بڑھے۔ خطرے کے احساس نے مجھے اور کلپنا کو چوکنا کر دیا اور ہم لوگ تیزی سے ایک طرف بھاگ کھڑے ہوئے۔ ہم کھیتوں میں بھاگ رہے تھے اور جیپ یہاں نہیں چل سکتی تھی، اس لیے وہ لوگ پیدل ہی ہمارے پیچھے دوڑنے لگے۔ اچانک ہی وہ رک گئے اور کلا بازیاں کھانے لگے۔ ہم لوگ حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ وہ لوگ چیختے چلاتے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ ان کو کوئی نادیدہ ہاتھ اٹھا کر نیچے پٹک رہا تھا جس کی وجہ سے وہ پوری طرح زخمی ہو گئے تھے۔ کوئی اندیکھی طاقت ان کا بہت برا حشر کر رہی تھی۔ وہ جیپ بھی وہیں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ ہم دونوں جو کھیتوں میں چھپنے کی کوشش کر رہی تھی باہر نکل آئیں۔ یہ آنن فانن جو کچھ ہوا تھا اس نے ہمیں حیرت زدہ کر دیا تھا۔ خیر ہم گرتے پڑتے گھر پہنچ گئے تھے۔ جس وقت وہ لوگ ہمیں اغوا کرنے آئے تھے اس وقت وہاں اور کوئی نہیں تھا، اس لیے اس بارے میں کسی کو کچھ خبر نہ ہوئی اور نہ ہی ہم نے کسی کو کچھ بتایا تھا۔ ان لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا اس سے مجھے رام لکشمن کی باتوں پر یقین آ گیا تھا۔ میں باقی سارا وقت رام کے بارے میں ہی سوچتی رہی تھی۔ میں تسلیم کرنے سے ڈرتی تھی مگر اب میرے دل کی دھڑکنیں شور مچا کر کہہ رہی تھی کہ تم رام کی محبت میں مبتلا ہو چکی ہو۔ میں لاکھ جھٹلانے کی کوشش کرتی، رام ہندو ہے اور میں مسلمان، وہ بھی ایک امام مسجد کی بیٹی، بھلا ہمارا ملن کس طرح ممکن ہو سکتا ہے؟ اگر کسی کو اس کے بارے میں بھنک بھی لگ گئی تو ایک قیامت برپا ہو جائے گی۔ میرے ابا جان کی برسوں کی کمائی ہوئی عزت داؤ پر لگ جائے گی کہ امام مسجد کی بیٹی ایک ہندو لڑکے کے عشق میں مبتلا ہو گئی ہے۔ کچھ بعید نہیں کہ یہ پرامن گاؤں جہاں صدیوں سے ہندو اور مسلمان بھائی چارے سے رہتے ہیں، یہاں اس محبت کو لے کر دنگے فساد شروع ہو جائیں۔ ہائے کیا بے بسی سی ہے، کم بخت دل اٹکا بھی تو کہاں پر۔ میں تکیے میں منہ چھپا کر گھٹ گھٹ کر رونے لگی۔ محبت کا درد دل کو چین لینے ہی نہیں دے رہا تھا۔ اچانک ہی مجھے عجیب سی خوشبو آنے لگی، پھر کسی نے دھیرے سے میرے بالوں کو چھوا۔ میں ڈر کر اچھل کر بیٹھ گئی۔ کمرے میں میرے علاوہ کوئی اور نہیں تھا اور دروازہ بھی اندر سے بند تھا۔ پھر کون تھا جس نے میرے بال سہلائے؟ خوشبو بھی ابھی تک موجود تھی۔ آخر کون تھا یہاں جو نظر نہیں آتا تھا مگر موجود تھا؟ رام؟ کیا یہ رام تو نہیں تھا؟ کلپنا نے کہا تھا کہ رام کے پاس کچھ ایسی شکتیاں موجود ہیں جو عام انسانوں کے پاس نہیں، اور آج یہ بات رام نے بھی کہی تھی۔ لیکن وہ یہاں آیا تھا تو نظر کیوں نہیں آیا؟ یا پھر رام لکشمن انسان کے بجائے کوئی اور مخلوق ہے؟ اس سوچ نے مجھے لرزا دیا۔ میں نے بے اختیار آیت الکرسی پڑھی اور کمبل اچھی طرح لپیٹ لیا۔ چودھری بشیر اس وقت اپنی حویلی میں ہی موجود تھا۔ وہ ضمانت پر رہا ہو چکا تھا کیونکہ پولیس نے رشوت لے کر کیس کمزور کر دیا تھا اور چودھری بشیر کے ہی ایک آدمی کو بلی کا بکرا بنا کر کیس اس پر ڈال دیا تھا۔ وہ اس وقت اپنے کمرے میں لیٹا ہوا تھا جب اس کا ایک آدمی آ کر اس کے سامنے سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ چودھری بشیر نے اسے دیکھ کر پوچھا، لے آئے اسے؟ تو اس شخص نے لرزتے لہجے میں جواب دیا، نہیں سرکار، اس لڑکی کے سر پر کسی غیبی طاقت کا سایہ ہے۔ ہم بار بار کوشش کے باوجود ناکام ہو جاتے ہیں۔ کوئی اس لڑکی کی حفاظت کر رہا ہے۔ چودھری بشیر نے اسے حیرت سے دیکھتے ہوئے کہا، موجے تیرا دماغ تو درست ہے، یہ کیا اول فول بک رہا ہے تو؟ موجے نے کانپتی ہوئی آواز میں جواب دیا، سرکار میں جھوٹ نہیں بول رہا۔ اگر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے تو آپ بھی یہی کہتے کہ واقعی کوئی اس لڑکی کی حفاظت کر رہا ہے۔ چودھری بشیر نے اسے غصے سے تھپڑ رسید کر دیا اور کہا، نمک حرام، دفع ہو جاؤ یہاں سے، تیری نیت میں ہی کھوٹ ہے، اسی لیے تو بار بار کوئی فرضی قصہ سنانے بیٹھ جاتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے چودھری بشیر نے موجے کو دھکے مارتے ہوئے کمرے سے باہر نکال دیا تھا۔ ملازم کو باہر نکالنے کے بعد چودھری بشیر خود اٹھ کھڑا ہوا اور الماری میں سے پستول نکالنے لگا اور پستول پر سائلنسر فٹ کرنے لگا۔ اچانک ہی اس کے ہاتھ سے پستول نیچے گر پڑا۔ چودھری بشیر نے جیسے ہی پستول اٹھانے کے لیے جھکنا چاہا، کسی نے اس کے کمر پر زور سے تھپڑ رسید کیا۔ چودھری بشیر کے منہ سے گالیاں نکل پڑیں۔ گالیاں دیتے ہوئے وہ سیدھا ہوا۔ کون ہے الو کا پٹھا؟ کس کی جرت ہوئی ہے ایسا کرنے کی؟ چودھری بشیر نے گھوم کر اپنے پیچھے دیکھا مگر کوئی ہوتا تو اسے نظر بھی آتا۔ کمرے میں اس کے علاوہ اور کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ چودھری بشیر نے پستول اٹھا کر جیب میں رکھا اور وہاں سے باہر نکل گیا اور اس طرف چل دیا جدھر فریحہ کا گھر تھا۔ ابھی وہ رستے میں تھا کہ چودھری بشیر کے گال پر زور سے تھپڑ پڑا، لیکن تھپڑ مارنے والا نظر نہیں آیا۔ اس کے آس پاس کوئی بھی نہیں دکھ رہا تھا۔
वो हैरत और खौफ से इधर उधर देखते हुए चीखने लगा, कौन हो तुम? सामने आप बुज़दिल के बच्चे। हालांकि उस वक्त वो खुद खौफ से कांप रहा था। सामने आ गया तो जिंदा नहीं रहेगा चौधरी, एक भारी आवाज ने कहा। तुम कौन हो? कौन हो तुम? चौधरी बशीर पागलों की तरह एक ही सवाल पूछने लगा। मैं तुम्हारी मौत हूँ, उसने कहा, और उसके साथ ही कोई उसके सामने आ गया जिसे देखकर चौधरी बशीर का रुआ रुआ कांप उठा था। वो एक खौफनाक शक्ल वाला शख्स था जिसकी आंखें सुर्ख अंगारों की तरह दहक रही थीं। उसके बाल कांटों की तरह खड़े हुए थे। तुम्हारा इस दुनिया को अलविदा कहने का वक्त आ गया है चौधरी साहब, वो भारी और डरावनी आवाज में बोला। वो कोई और नहीं, राम लक्ष्मण था। चौधरी बशीर की तो घिग्गी बन गई थी। उसके गले से कोई आवाज ही नहीं निकल रही थी। यकायक उसने जेब से पिस्तौल निकाला और एक के बाद एक गोलियां चलाने लगा। वो उस वक्त तक ट्रिगर दबाता रहा जब तक उसमें से ट्रिच की आवाज नहीं निकली। पिस्तौल खाली हो गया था। चौधरी बशीर ने एक तरफ छलांग लगा दी। गोलियों ने राम लक्ष्मण का कुछ नहीं बिगाड़ा था, क्योंकि वो इंसान तो था नहीं, वो एक जिन था जिस पर ये पिघला हुआ लोहा कोई असर नहीं कर सकता था। चौधरी बशीर दौड़ता गया, आखिरकार थक कर गिर गया। उसने पीछे पलट कर देखा, राम लक्ष्मण नजर नहीं आ रहा था। खुदा का शुक्र है कि बच गया मैं, उसने सुकून की सांस लेते हुए सामने देखा, मगर वो अगला सांस न ले पाया क्योंकि सामने खड़े राम लक्ष्मण ने उसकी गर्दन अपने हाथ में जकड़ ली थी। चौधरी हाथ पांव मारने लगा, मगर राम के सामने उसकी ताकत कुछ नहीं थी। चंद लम्हे बाद उसका बेजान जिस्म नीचे गिर गया। एक जालिम का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा हो चुका था। मैं चीख कर उठ बैठी। ख्वाब में मैंने चौधरी बशीर को मरते हुए देखा था। उसे मारने वाला मुझे नजर नहीं आया था। मुझे ये इल्म तो नहीं था कि ये ख्वाब सच्चा था या झूठा, मगर बशीर की इस कदर भयानक मौत ने मुझे डरा दिया था। अब वो तुम्हें कभी भी तंग नहीं कर सकेगा, किसी ने मेरे कान में सरगोशी की। मैंने बौखलाकर इधर उधर देखा। ये आवाज तो राम की थी, मगर वो यहाँ कैसे आ सकता था? मुझे ये बंद दरवाजे नहीं रोक सकते फरीहा, क्योंकि मैं इंसान नहीं, एक जिन हूँ। उसकी आवाज दोबारा सुनाई दी। मैं साकत जामत बैठी रह गई। तो राम लक्ष्मण किसी इंसान का नहीं, एक जिन का नाम था। मैं बड़ी देर तक कुछ बोलने के काबिल ना हो सकी। काफी देर बाद जब मेरी गोयाई ने मेरा साथ दिया तो मैंने पूछा, क्या तुमने उसे मार दिया? राम की आवाज सुनाई दी। अगर मैं उसे नहीं मारता तो वो तुम्हें और तुम्हारे बाप को मार देता। मैं चुप रह गई। वो सही कह रहा था। कुछ देर बाद उसने फिर से कहा, फरीहा, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और अपनी जिंदगी तुम्हारे साथ ही गुजारना चाहता हूँ। मैं थक गया हूँ बेमकसद यहाँ वहाँ फिरते फिरते। मेरी बेकरार हयात को एक किनारा दे दो। उसकी आवाज की थकन और उदासी से मेरा दिल मुट्ठी में आ गया। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? तुम हिंदू हो और मैं मुसलमान, क्या तुम मेरे लिए अपना मजहब छोड़ दोगे? मैंने पूछा। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ सकता हूँ, मैं मुसलमान होने के लिए तैयार हूँ। उसकी बात सुनकर मैं खुशी से खिल उठी। वो मेरे सामने जाहिर हो गया और मुझे देखकर मुस्कुराने लगा। मैंने अपना सर उसके सीने पर रख दिया। मोहब्बत अगर सच्ची हो तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। मेरा और राम का मिलन भी अब मुमकिन बन चुका था। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपकी किसी दोस्त, रिश्तेदार या बहन के साथ खुदा ना करे ऐसा कोई वाकया पेश आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में उसके बारे में ज़रूर बताइए।